get started? Yes, yes. Chalo. Yeah. Umesh? Aye, sir. Where's Umesh? I don't see Umesh. You don't see him? He has serious network issues today. I think today there are severe network issues everywhere. Zoom has been giving problems this week, I guess. That's what I also heard. No, I think Sunday, I think this afternoon, evening, there are far too many webinars. I think all using Zoom. I think there is okay. Let's get started now. It's all kinds of problems. I think already 10 minutes past almost. Yeah, go ahead. Yeah, we can start. Yeah. DC, can you do the introductory honors, please? Umesh, you're muted. Can't hear you. Who's muted? You are. No, my other connection. 1 minute. Oh, okay. Yeah, can you please start? I didn't see you, so please. Okay, BC sir is doing the introduction. Yeah, but the usual, your remarks. Opening remarks. Okay, everybody, welcome to the latest session in the Deccan Birders webinar series. Today we have Boluji joining us to talk about his journey at Bharatpur. He spent more than 5 decades there, and I'm sure it's going to be a very fascinating journey. I will request Dr. B.C. Chaudhary to do the introductions, please. Thank you very much. How does one introduce Bolu? I think introducing Bolu is like introducing Keoladeo Ghana Bird Sanctuary. I think the existence of Keoladeo Ghana Bird Sanctuary is probably more younger than Bolu's association with the Keoladeo Bird Sanctuary itself. I think Bolu has been associated with Keoladeo Bird Sanctuary from the time he was on his nappies. That is what I have been hearing from all sides, including him. His journey, along with his father, to help Dr. Salim Ali in his bird ringing and bird work, brought him to the focus, brought him to the his association with birds of Keoladeo Ghana. And rightly so, I think after his father joined the Keoladeo Bird Sanctuary, he also followed suit. And from the day he had joined to the forest department to take care of the Keoladeo and the birds, he has probably contributed about 40 years of his time with the department before he hung his boots. But they didn't let him. He only hung one of his boot. The other boot was still about to be hung. They called him back again and put on the shoes again. And he has been continuing with the with his work with the Keoladeo Bird Sanctuary post-retirement. And for his unflinching devotion to work in the Keoladeo Bird Sanctuary, he has been recognized by no less than the Carl. BC, you've gone on mute. Yeah, I can unmute now. Okay. I think I have been having a connectivity problem, severe connectivity problem. It comes for a couple of minutes and goes off. But I think, no one could be a better watcher of the Keoladeo Ghana birds. Every single species, whether it is on the decline, whether it is on the increase, whether they are breeding there, whether they are coming to feed there, whether they are coming to roost there, ask. If you want to know anything about any species for that matter, there is only one person whom you go to, that is Bolu Abrar Khan. And sometime, I said, who is Bolu Abrar Khan? If the Bolu name was not there, I would even know.
everybody knows him by only simple Bolu. And Abrar Khan is something, which people probably come to know much later. Oh, he is Bolu Abrar Khan. I think for most of you, I think he is Bolu Abrar Khan. Even I think, that I came to know about a few years ago. All I knew was, he is Bolu. To the entire world, he is Bolu. And Bolu बहुत भालो काम भी करते हैं. And today, he will take us on a journey. Perhaps, from his black and white picture days to the current colorful transparencies and so on, colorful digital pictures and so on. He may have, several thousand pictures of these several hundred species, that come to the Keoladeo Ghana Bird Sanctuary. There is no species what he has not taken pictures of. And rightfully, his next generation has also followed suit. And next to Bolu, his son is also recognized as a wonderful photographer of birds and the habitat of Keoladeo Ghana. And very interestingly, if they know you are producing something which requires one of their pictures, you cannot have anybody so gleefully, so willingly share their pictures with you, not even asking a single question, not even asking for acknowledgement to be given to them. That is Bolu and his son. So I think, I wouldn't say anything more. I think, let's go through the journey of Bolu Abrar Khan through his eyes and ears, and for our eyes only. Today's work is for our eyes only. Today's presentation by Bolu is for our eyes only. Over to Bolu. Bolu ji, aapke liye abhi. Thank you so much, BC sir. Bolu ji, just 1 second, आप शुरू करने के पहले, can I request all the participants, please switch off your videos and audios. And if you have any questions, please put it in the chat. We will take them up at the end of the session. Right, Bolu ji, over to you. नमस्कार सर. बीसी सर ने सारा कुछ मेरे बारे में बता दिया. अब मैं बताऊं, मैं जल्दी आप उस बार मेन उस पे आता हूँ. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और 11 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वेटलैंड है. मैन मेड वेटलैंड है, लेकिन ज्यादा बताने से तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको कहता हूँ कि केवलादेव के पास में 1 किलोमीटर दूर जो अजान बंद है, उसमें 2 नदी का पानी आता है, कमली नदी और दूसरी नदी में बोल रहा हूँ. वो उसमें सारा नेचुरल फूड आता पक्षियों का, और इतना फूड आता था बच्चे. अब तो पानी कम हो गया है, जब नेचुरल उसमें पानी जब जना में आता है तो हमारे 15 स्पीशीज बर्ड ब्रीड करते हैं मानसून में. बहुत सारी बर्ड, खाना बहुत होता है तो पक्षी ब्रीड करते हैं. चलो उससे आगे मैं आपको ले जाता हूँ. ये सारस क्रेन हमारा सिंबल है. आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है. और ये चल नहीं रहा. ये अजान बंद कहलाता है और करीब 5 से 1 किलोमीटर है, जो घना कैनाल जो पूरे पार्क को फीड करती है, और पूरा जो पार्क जो है 8 ब्लॉकों में बटा हुआ है. तो जैसे हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट को भेजते हैं अपनी पानी के आने के लिए रेफ्रिजरेशन, तो वो खोलते हैं और वो पानी हम हमारे 8 ब्लॉकों में हर जगह स्विच गेट हैं, उनको नंबर बाई नंबर लेते रहते हैं. जब पानी आने से अगर जुलाई में अगस्त पानी आ जाता है, जुलाई अगस्त में, तो आप देखिए हैबिटेट कितना खूबसूरत होता है. ये है वाटर लिली. वाटर लिली के 1980 जो एक्वेटिक बीट जो हमारे यहाँ होती है, जो वाटर लिली है, ये भी पक्षियों का खाना है, डक का खाना है. ये वाटर लिली के अंदर ऊपर एक ट्यूबर होता है, नवंबर में करीब पक जाता है, नवंबर दिसंबर में. उसको डक बीज खाते हैं, बहुत सारे बीज निकलता है उसके अंदर. और इसका ट्यूबर, क्योंकि रूट का बड़ा ट्यूबर होता है, उसको खाती है सारस क्रेन, साइबरिन क्रेन खाती थी, और वाइल्ड बोर खाते हैं.
ये ग्रासलैंड एरिया है, ये पूरा ग्रासलैंड फॉरेस्ट है करके बुलाते हैं उसका सवाना। ये पूरे साल पक्षियों की एक्टिविटी रहती है यहाँ। आप ये देखेंगे मानसून में तो पूरा ग्रीन है जुलाई अगस्त में, और उसके बाद दिसंबर जनवरी में ब्राउन घास हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे मुनिया है जो सीजीटर बर्ड है, गर्मियों में लाल ये ब्रीड करते हैं, और इंडियन स्पोर्टेड ईगल ब्रीड करते हैं मार्च अप्रैल में, किंगबर्ड से ब्रीड करता है यहाँ, हनी बजट ब्रीड करते हैं यहाँ, सिक्का ब्रीड करते हैं यहाँ, बहुत बढ़िया हैबिटाट। और बरसात में जो बाद में जो जुलाई अगस्त में हरा हो जाता है एकदम, तो दूसरी बर्ड जो सीजीटर बर्ड है वो भी काफी ब्रीड करते हैं। पानी जैसे हिरोनली में पहुंचते ही ये 15 स्पीसीज बर्ड अपनी, और सबसे पहले ओपन बिल स्टॉक जून में, क्योंकि ओपन बिल स्टॉक हमारे यहाँ खाली ब्रीड करने आता है, वो पूरे साल ठहरता नहीं है, और वो जून के एंड में जुलाई में अंडे दे देता है, और नवंबर में बच्चे एंड में बच्चे उड़ने लगते हैं, तो वो यहाँ के पास से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो ओपन वाटर एरिया में वाटर जो पानी है चलो वाटर हमारे यहाँ जो मार्च है उसमें शायद हो सकता है वो नहीं दिक्कत होती हो, तो वो पूरे साल ठहरता नहीं है, चला जाता है। काफी करीब 400-500 बर्ड और ज्यादा ब्रीड करते हैं। ओपन बिल देखिए, ओपन बिल आप ये आने से पहले जब जून में इकट्ठे हो जाते हैं एंड में, तो कलर देखिए आप इनका, और ये ओपन बिल साथ में बैठे पर्पल ग्रे हेरोन, और राइट में आप बैठा है पर्पल हेरोन। ये सारी चिड़िया साथ मिलकर वो फिर क्रॉस स्नेल खाते हैं ओपन बिल स्टॉक, तो पूरे साथ में ब्रीड करते हैं। स्पून बिल भी अगस्त सितंबर में ब्रीड करता है। आप देखें ब्रीडिंग प्लूमेज में अभी आप सेम पक्षी है, एक सा कलर है, आप पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है। जब मेटिंग होती है उसी टाइम आप पहचान सकते हैं। अब ये है मेल स्पून बिल, कैसे पहचाना हमने कि हमारे सामने मीटिंग हुआ, तो ये एलोटिप दिख के ऊपर देख रहे हैं, जो एलोटिप ज्यादा है वो मेल के होता है, और ब्रीडिंग प्लूमेज में ये क्राउन देख रहे हैं, क्राउन और येलो कलर ये पूरा ब्रीडिंग प्लूमेज में आता है। और ये करीब हमारे पार्क में जो ब्रीड करते हैं करीब ज्यादा नहीं है, करीब 50, 60, 70, 80, और जैसे खाना ज्यादा होता है ज्यादा आगे बढ़ जाता है। लार्ज इग्लेट वो हिरोनी में ब्रीड करते हैं, चीटर बर्ड है और इंसेक्ट ये खाते हैं, और ये भी जुलाई अगस्त में ब्रीड करते हैं काफी एक साथ में। अब ये ब्रीडिंग प्लूमेज में है, आप भी देखिए पक्षी जो पानी सबसे पहले ओपन बिल जगह घेर लेता है, तो इनको दिक्कत जो पीछे आने वाले पक्षियों को दिक्कत रहती है। तो ये करीब 150-200 बर्ड ब्रीड करते हैं, बाकी क्योंकि सेंसस करते हैं हम हिरोनी में, जब भी जो पक्षी ब्रीड करते हैं उसकी सब पूरा आप देख रहे हैं ब्रीडिंग प्लूमेज में है कलर, और पूरे साल रहता है पास में। आप ब्रीडिंग तो देखेंगे येलो हो जाएगी, बिल्कुल येलो डीप हो जाएगी, और जो पर भी नहीं रहेंगे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मीडियम इग्रेट आप देख रहे हैं, मीडियम इग्रेट में बड़ा डिफिकल्ट रहता है, लार्ज मीज में आप लोग पहचानने में भी गलती करते हैं थोड़ा। ये नेक के नीचे जो आप देख रहे हैं लॉन्ग फेदर, ये मीडियम इग्रेट के पूरे साल रहता है, पूरे साल। और अभी ब्रीडिंग प्लूमेज में ब्लैक बीक है, और आफ्टर ब्रीडिंग प्लूमेज के येलो बीक हो जाएगी, काला टिप होगा उस पर, पूरे येलो बीक के ऊपर काला टिप, वो पूरा साल रहता है। और ये भी 200-300 ब्रीड करते हैं पास में। सैग का नाम तो चेंज कर दिया, सालिम अली साहब जी कहते थे कि हम जो बुलाते थे, अरे अंग्रेजों ने क्यों नाम, तो अपने नाम से बुलाएंगे। ये फीड करा रहा है, ये भी बर्ड जो है जहाँ ब्रीड करने आती है, क्योंकि हमारे पास में कुछ बहुत, मैं करीब 20-40 साल पुरानी बात बताता हूँ आपको, इतना सारा फीड होता था कि कभी पानी रुका ही नहीं, पानी हमेशा पानी रहता था, और जो नदी से गंभी नदी और बाणगंगा से पानी आता था उसमें फीड आता था नेचुरल काफी, तो उसको ये कारी यहाँ ब्रीड करने आता है, और ब्रीड कर 4 से 5 बच्चे देता है। कितना सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया एकदम, क्योंकि खाना बहुत है, खाना है तो ठीक है, वो उतनी अंडे देंगे उतने, और दोनों बर्ड फीड कराते हैं बच्चों को, दोनों ही इंक्यूबेट करते हैं। और ये भी नवंबर में छोड़ देते हैं, उन्हें बाहर चले जाते हैं,
पार्क में पूरे साल नहीं रहता, ये तो खाली ब्रीड करने आता है। और ये अभी इस टाइम तो हमारे यहाँ 2,500-3,000 और ये ब्रीड कर रहे हैं। एक जमाने में ये मोर देन 5,000 एम कृष्णन साहब, हनुमंत राव साहब और घोषवाड़े साहब, पीटर जैक्सन, डॉक्टर सलीम अली साहब, ये आते थे जब वहाँ करते थे। और बड़े बड़े पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी, ये देखो खाने के पीछे से सभी जगह लड़ाई होती है। ये मानसून आने से इतनी बड़ी होती है और अपनी अपनी टेरिटरी में हर आदमी, इंसान, सभी और जो अपनी टेरिटरी में पक्षी और जानवर कोई नहीं आने देता, कोई दूसरा आता है तो वो उसको दिक्कत लगती है कि मेरा खाना खा जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी फाइटिंग लड़ रहे हैं स्नेक बर्ड। तो स्नेक बर्ड हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 150 हैंडेड नेस्ट मिलते हैं। किसी टाइम में ज्यादा थे, कभी नंबर कम हो गया। 2-3-4 साल से ये नंबर बढ़ता गया है क्योंकि नहीं आया। तो चीज जब खाने लगा था तो उनका नंबर बढ़ा। अब जो है इस टाइम करीब 100 पेयर ब्रीड कर रहे हैं पार्क के अंदर अभी। 9 हेरोन उनके सब पक्षियों के साथ में। और ये करीब 100-150 पक्षी जो है, मतलब ये पेयर जो है वो नेस्ट बनाते हैं। और मेन तो यही है खाने के ऊपर। और अभी कई सालों से ये अच्छा ब्रीड कर रहे हैं। खाली 2017 में अभी है करते हैं। हाँ, कैटल ईगल बहुत कॉमन है। ये पक्षी ऐसा है ब्रीडिंग प्लूमेज में आप हर जगह आप देख सकते हैं इसको। ये गांव में वहाँ भी और अप्रैल मई में ये ब्रीड कर लेता है क्योंकि ये ग्रास कॉपर्स है, फ्रॉग है और खेतों में इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वही खा गए। तो हमारे पास में ये ज्यादा ब्रीड नहीं करते, कम करते हैं। पर्पल हेरन, पर्पल हेरन आप देखेंगे ये कभी भी ओपन वाटर में नहीं मिलेगा। पर्पल हेरन मार्च होगा, मार्च के अंदर ही फीड करता है, मार्च में फीड करता है, ओपन वाटर के अंदर नहीं करता फीड कभी। और ये हम वैसे तो नेस्ट करता है ये टाइपा के ऊपर टॉल ग्रास पे पर्पल मोरन के साथ में, ये अलग हेरोडी बनाता है। लेकिन इस टाइम में हमारे पार्क में भी बनाता था, लेकिन अब वो हमारे यहाँ घास नहीं है लंबी टॉल ग्रास, तो ये पेड़ों पे ही ब्रीड करते हैं अदर बर्ड के साथ में। जैसे अपन करते हैं ह्यूमन बीइंग में ही रहता, बच्चा भूखा होता चिल्लाता है तो पेरेंट्स खाना देते हैं, इसलिए 4 अंडे देता है। और वो जब बच्चा बड़ा होता है करीब 1-1.5 महीने का तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो दोनों बर्ड जो है वैसे तो फीमेल है, पीली आंख देख रहे हैं आप। वैसे तो ज्यादातर खाता है सांप, वाटर स्नेक, फ्रॉग और फिश और छोटा टर्टल उसको भी खा जाता है। लेकिन जब भी कुछ नहीं मिलता है तो ये बर्ड्स को, पक्षी को मार के भी खा जाता है। तो ये दूसरा मेल ये और ये है कूट। तो कूट को ये तो ऐसे ही है, ये ज्यादातर जो है डिपेंड बच्चों को फीड दे देता है, ये बच्चे को भी फीड दे देता है इसी का पक्षी को मार के और नीचे करके हिट करके उसको मीट निकाल के उसका पूरा खा लेता है और फिर ज्यादा पूरा फॉलो पड़ जाता है। जैसा मोर है ना, सॉरी, ये बुली नेक स्टॉक, ये तो नेस्ट बनाते हैं काफी ऑलरेडी बनी बना लेते हैं। और ज्यादातर फिश फ्रॉग ये सब खाते हैं। तो ये पार्क के अंदर 8-10 नेस्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा।
व्हाइट नेक स्टॉक ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये हमारे यहाँ खाली विंटर में आता है और पासेज माइग्रेशन होता है जब भी आता है करीब 16 दिन के लिए। ये बहुत आते थे, लार्ज ग्रेटर रेजिडेंट स्टॉक और लेसर, और पार्क में उस टाइम हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन से सांगरा साहब, उन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की है। तो ये जो है लेसर ग्रेट अब तो नहीं आता है, क्योंकि ये आता था हमारे यहाँ खाली फिशिंग खाना खाने के लिए। पानी की जो दिक्कतें हुई ना, उस दिन से करीब 20 साल से नहीं आ रहा, पुराना फ्लाइट ही है फ्लाइट का फोटो। ये एक बहुत डाटा जो है मच्छी, जो बड़ी मच्छी पकड़ी है तो क्या करती है, हिट करती है, पार हो जाता है, वो निकाल के ऊपर फेंक के खाती है, वो उसकी आदत है। ये लार्ज कॉर्मोरेंट है, लार्ज कॉर्मोरेंट कितना बड़ा रोहू मच्छी है, और ये लार्ज कॉर्मोरेंट तो पूरे ये खाली ब्रीडिंग टाइम में आते हैं, जुलाई अगस्त में, और ज्यादा नहीं। लेकिन अभी हमारे आगरा में ये काफी जो टिक्कम है हिरोनिश बनती है, वहाँ भी काफी ब्रीड करते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमारे इनके घर छोटे रह गए, घर मतलब पेड़ जो है बड़े बड़े टूट गए, जहाँ ये ब्रीड करते थे वो पेड़ नहीं है, तो वो जगह नहीं है, इससे इन्हें नहीं किया। लेकिन 2018 में ब्रीड किया 2-3 पेड़ में, मतलब बहुत साल के बाद। ये तो विंटर विजिटर है, पूरे साल पार्क में नहीं रहता है, काफी शौक में आते हैं। व्हाइट आइबिस ब्लैक, ये हम तो बात वही बोलेंगे, ब्लैक हेडेड नाम रख दिया है, पूरी साली मेरी साहब वाली बात है, हम तो अपने नाम से बोलेंगे। तो ये भी ब्रीड करने पर इस पक्षी का देखो आदत क्या है कि अपनी कौम, अपनी जो इनकी जो स्पीसीज है वो एक साथ नेस्ट बनाती है, एक साथ बैठ के नेस्ट बनाते हैं सारे, और वो बच्चे सब एकदम मिक्स हो जाते हैं। ये दूसरी मतलब स्पीसीज के सब बना लेती है अलग, एक आध दो, बाकी ज्यादा है जगह मिल जाती है तो सब एक साथ नेस्ट बनाते हैं। करीब 50, 60, 70, 80 पेयर ब्रीड करते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन बर्ड है, लेकिन सब तरफ ये इसका प्रेडेशन जल्दी होता है, क्योंकि ये बर्ड सिंगल फीड करती है ना इधर उधर अलग रह के, ड्राई में, पानी में, कहीं भी, और स्ट्रीट में भी मिल जाती है। तो ये फाइटिंग हो रही है इनकी कोई टेरिटरी पाई बात है। ये ब्रीड करती है जून जुलाई अगस्त में, और बोलती है जब मानसून आते ही ये सब बोलती है जैसे ड्रम बज रहा है। ब्लैक बटन मेल, ये ब्रीड करता है पार्क में, ज्यादा नहीं 8 से 10 पेयर और ज्यादा, लेकिन इतना सारी है एकदम अंदर घास में, उसमें बुश में, झाड़ी में आप ब्रीड करता है सर। तो आप देख सकते हैं, फोटोग्राफी नहीं करते तो अच्छा नहीं, बिल्कुल एकदम वैसा होता है, और बहुत सारी होता है, ये पूरे साल रहता है पार्क में, फिश फ्रॉग यही खाता है काफी। चेस्टनट बिटन ये भी ब्रीड करती है पार्क में, और ज्यादा नहीं है, 5, 6, 7, 8 जी देख सकते हैं आप। एलोबिटन ये मार्च अप्रैल में भी ब्रीड करती है, मई जून में भी करती है, ज्यादा नहीं कोई। ये बिटन का नंबर तो कम ही है। वाटर कॉक आप भी देख रहे, वाटर कॉक पूरा दिल्ली जून के एंड में पार्क में आ जाता है। ये वाटर कॉक यहाँ ब्रीड करने आती है, मेल है, ये ब्रीड करने आता है, और ये नवंबर तक रहता है, फिर उसके बाद पर्पल मोरन काफी है, ज्यादा करीब 500, 800, 1000 के लगभग, और ये वेजिटेरियन, ये पूरा जो पाँच कलम घास है वो उसको ज्यादा पसंद करती है खाना, पर हमारे यहाँ ब्रीड करती है पूरे साल, मतलब विंटर में भी ब्रीड करती है, आप भी देखो। और ये हमेशा बनाते हैं, उसमें छुपा कर ये काले काले बच्चे होते छोटे, और फिर उसके बाद ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाहर निकला। इंटरेस्टिंग हुआ, जो मेरे को दिख रही थी बटर रेल, और सालिम साहब थे, मैंने कहा अरे सर वाटर रेल, बिना दूरबीन देखे हुए बोला, तो गुस्सा हो गए, कैसे बोलते हैं वाटर रेल, कैसे कहते वाटर रेल, ये आपने कैसे देखा, और उनको दिख रही जरूर दिख रहा है। फिर मैंने देखा तो
नाम है सर, पहले देखो पहचानो फिर बोलो। मैंने कहा सॉरी सर, ये रूडी क्रैक है। तो रूडी क्रैक ये क्या है, पानी ज्यादा होता है ऐसा फीड करती है, पर सबसे अच्छा देख सकते हैं आप मार्च अप्रैल में पानी कम हो जाता है तब बहुत अच्छी दिखती है। हाँ, पूरे साल नहीं रहती पास में। बैलेंस रेट भी अभी इस टाइम जून जुलाई अगस्त सितंबर में पूरे साल नहीं रहते। हाँ हाँ, जब वो दोनों स्थिति जैकना ब्रीड करते हैं, लेकिन जैसे बच्चा जो था मार्च हरियर ने आवाज लगाई, इसने सुना और उसने बच्चे को कहते एक को तो अंदर छुपा लिया है, दूसरा अंदर जा रहा है, तो बच्चों को सेव करने के लिए ये ऐसे छुपा लेते हैं, जी ब्रीड करते हैं। आप सब जानते हैं इसका भी जी है। मैंने जैसे देखा कि मेल जो है वो छोटा होता है और फीमेल है वो बड़ी होती है, और फिर मेल बड़ी इंक्यूबेट करता है, बच्चों को पालता है और थोड़ी हर 2-3 मिनट में आके और इसको वो बच्चों फीड करने जाता है, अंडे पैसे फीड करके गीली बॉडी करके आता है, रब करता है इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। कलरफुल ये इसका ब्रीडिंग का अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, ये बटर लिली को बड़ा पसंद करता है, उसके पास में नेस्ट बनाना। ये देखो ये तो बहुत कॉमन है, ग्रेट साल में ब्रीड करती है, वो इनको खाना खूब है। जब पानी एक बिल्कुल जब काम मई और जून हमारे यहाँ 2 महीने ऐसे रहते हैं जिससे कि पक्षी नहीं रहते, ये छोटे पडल्स में पानी रहता है, तो पूरा जो पास का जो लेक का वेटलैंड एरिया वो सूखता है, क्योंकि वो सुखाना अपने आप नेचुरल सूख जाता है, तो पूरे साल पानी रखने से तो वो खूब वेजिटेशन आता है, वो आएगी। अब तो इसका नाम चेंज कर दिया, मैं तो पेंटेज स्नाइप ही कहूँगा। पेंटेज स्नाइप आप देख रहे हैं मेल फीमेल दोनों। अब क्या होता है, ये इसमें भी वही है मेल, क्योंकि एक नेचर ने ऐसा कुछ बनाया है कि फीमेल खूबसूरत है, इसका प्रेडेशन जल्दी होगा, क्योंकि जो प्रेडेटर है इसको आराम से देख लेता है, इसका प्रेडेटर आराम से देख लेता है इसको, मेल बिल्कुल कैमोफ्लाइज रहता है, तो पास में ब्रीड करते हैं ये मार्च अप्रैल मई जून जो आ जाते हैं, जो शैलो वाटर होता है उसमें घास होती है, तो बच्चे सेफ रहते हैं, और फिर भी सारे स्ट्रेन इनके अंडों को खा जाती है करते थे। रेड वाटर लैपिंग ये तो ब्रीड करती है मार्च अप्रैल मई जून। येलो वाटर लैपिंग ये भी ब्रीड करती है मार्च अप्रैल मई जून में, कॉमन है काफी। इंडियन कॉटर ये ब्रीड करती है मार्च अप्रैल मई में, क्योंकि क्या है कि ये पानी वेटलैंड में बहुत घास होती है ना पूरा एकदम, तो ये पक्षियों को चाहिए खुला हुआ ऐसा एकदम, जब उनका खुल जाता है तो लाल क्रिकेट और ये भी आके करते हैं। स्पॉटबिल डक 4 स्पीसीज हैं रेजिडेंट डक, स्पॉटबिल डक, नेशनल व्हिस्टलिंग टेल, कॉन्ग डक और कॉटन टेल, तो ये पूरे साल ही अब ब्रीड करते रहते। अब पानी ये गर्मी में भी कर लेती है, क्योंकि जब पानी पडल्स में रह जाता, पानी रखते हैं सोलर पंप चला के पानी को, उसको आपने जो पडल्स में मच्छी मेंढक कीड़े मकोड़े कछुए ये रहते हैं ना, और जानवर भी पीते हैं, तो ये वहाँ आराम से अपना, क्योंकि ये जो घास होती है वो प्रोटेक्शन मिलता है, और उस टाइम इतना प्रेडेटर भी नहीं होता है, ईगल भी नहीं होता। हाँ देखिए, रेड के प्रोसेस और कूट इन दोनों का साथ ऐसा है कि दोनों डाइविंग बर्ड है, और ये हाइड्रोला नीचे डाइव मारते हाइड्रोला निकाल के लाते काफी, तो कूट तो हमारे यहाँ 10-15 हजार आता करीब, और ये रेड के प्रोसेस तो ज्यादा से ज्यादा 500-600 के लगभग आपके लिए, और जून मतलब ये दिसंबर जनवरी और फरवरी में एंड में जब ज्यादा सर्दी होती है तब तक तो रहते हैं ये खूब, और फरवरी से बैक माइग्रेशन शुरू हो जाता है, चले जाते हैं, तो फिर नहीं तो खूब तो रहता है। 12 के बीच ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन किसी टाइम में ये भी ज्यादा आता था, क्योंकि अब पार्क के बाहर जो इनका फीडिंग एरिया था उसमें जो बीटर बुक होते थे, मसूर एक दाल है उसको किसान अब नहीं करता क्योंकि पानी नहीं आता है,
तो इसलिए इनका नंबर भी कम हो गया। कॉमटर मार्च पर है, देखिए मार्च में काफी साफ बहुत सारे बहुत अच्छे, तो पर ये अभी ब्रीडिंग टाइम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये रहते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी में भी चले जाते हैं जी वापस मानसून आते ही। 3 होल में ब्रीड करते हैं और मैंने करीब 17 एग देखे हैं इनके। तो जो नेक्स्ट हेल्पर होती है ये कॉटन टील 3 होल में ब्रीड करती है, ये भी 3 होल में आते हैं। 25 मैंने इनके बच्चे देखे, 25, और ये मेल है, रिंग दिख रहे हैं आप, फीमेल ही इंक्यूबेट करती है इससे। और गागनी टील हमारे यहाँ सबसे पहले अगस्त में गागनी टील आती है। गागनी टील को चाहिए सैलो वाटर, तो अगस्त में आके थोड़े दिन ठहर के फिर चली जाती है साउथ की तरफ, फिर ये आती है फरवरी में, तो फरवरी में आके और बिल्कुल अप्रैल मई तक रहती है, फिर चली जाती है। सैलो वाटर को पसंद करती है ज्यादा। फरवरी मार्च में भूकंप बहुत अच्छा देख सकते हैं आप। फ्रीजूनियस डक ये भी इसका नंबर ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 500 के लगभग ये भी आते हैं। सबलर इसका सबलर, पिंटेल, गैरबल, कॉमन टेल, इन 10 का नंबर सबसे ज्यादा नंबर जो ये आते हैं। और पिंटेल, सबलर, गैरबल तो बहुत ही ज्यादा नंबर आता है, करीब 5,000 10,000 ऐसे। ये ब्रीड करती है, धी रहती है पूरे साथ, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। लेसर है, ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, और ये अपना नेस्ट इसमें घास में बना लेती है। अबेंडन नेस्ट है 5 में लाके, उनमें भी कर लेती है ब्रीड। रूबी शेल्टर मेल, मैं समझता हूँ ये गर्दन की जो रिंग सी दिख रही है, ये मेल है। ये विंटर विजिटर है, ज्यादा नहीं आते, ज्यादा 230 से 500 करीब, ज्यादा बढ़ जाता है जब पास माइग्रेशन जाने वाले होते हैं, लौट के आते हैं, फिर जब नंबर बढ़ जाता है। करेला ग्रीन, तो बिहाइंड देख रहे हैं हम, पीछे जो बाइक दिख रहे हैं सारी पिंटेल है, ये बहुत अच्छा। और ये जो 5 पैर घास है हमारे जो सबसे ज्यादा मेन घास है पानी की, तो जो लेक में उसको खाते हैं सब। ये देखिए अब ये पिंटेल मलाट भी दिख रहा है इसमें, और मलाट तो कम आती है, मार्च होता है, लेकिन पता नहीं पहले तो आते थे, आप बहुत कम हो गए। और नीचे पानी में देख रहे हैं ना, ये हैबिटेट एकदम जनवरी का है ये फोटो। जनवरी में एकदम घास जो है जो 5 पहले नीचे चला जाता है, और ऊपर जो है ये आ जाते हैं, पानी आ जाता है, ऊपर बटा हो जाता है एक तरह से, फिर जी पक्षी आते हैं। हाँ विजन का नंबर भी हमारे यहाँ ज्यादा नहीं आता, 200-250 के लगभग, कम ही आते हैं। स्पॉटेड ईगल बच्चे हैं, ये विंटर विजिटर हैं, विंटर भी आते हैं। हाँ इंडियन स्पॉटेड ईगल आप देखें, इंडियन स्पॉटेड ईगल पहचानने की बात, ये जो येलो गैप देख रहे हैं ना आपसे आगे है, और जो लेग देख रहे हैं ना पैर ब्राउन कलर, और ये टेल के पीछे जो फर है ना इसके लॉन्ग टेल, और ये नीचे फर पूरे फुली लेग पैदा नहीं है इसके 3 से 4 पेयर हमारे यहाँ ब्रीड करते हैं पास में, मार्च अप्रैल मई में। अभी नेक्स्ट पे बच्चे हैं, सितंबर एंड में बच्चा नेक्स्ट छोड़ देता है। मोनोलॉजिकल, ये मैं आपको कहना भूल गया, ये क्या है कि जो हेरोल्डी का प्रेडेटर बर्ड जो है, मोनोलॉजिकल, बूटेड ईगल और ये ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये लोग हेरोल्डी में ये प्रेडेशन करते हैं, ये मारते हैं ज्यादातर, जिधर वो मोनोलॉजिकल। मार्च एरिया जो ग्रासलैंड एरिया में है, उसमें ये रूस्टिंग के लिए विंटर विजिटर है, और विंटर में ये करीब एक जमाने में हमने गिने थे 200 बर्ड, और शायद नेहरू जी और RSPB के बच्चे आए थे, सबों को पक्षियों का चित्र करना सिखाया था, और करण श्रीवास्तव उसका दोस्त शायद था, तो हमने सबने काउंट किए थे उन्हें। लेकिन अभी क्या है कि हमारे यहाँ एक डेटा तो भी जोली फ्लोरा इसमें आ गया है, तो कम क्रिस्टल सर्पेंट ईगल, ये सबसे 7-8 आते हैं, विंटर विजिटर हैं, पूरे साल नहीं रहते हैं यहाँ, विंटर विजिटर है। स्टेप ईगल ये 5, 6, 8, 10 यही आते हैं, क्यों खाने को बहुत है यहाँ,
वहाँ खाने के लिए इसके लिए काफी। इंपीरियल जुवेनाइल आप देखें, देखो पता नहीं क्या अडल्ट बर्ड आते हैं, पर ये जो ज्यादातर हर साल काम करते हैं तो 4 5 जुवेनाइल मिलते हैं। अडल्ट दिखता है फिर नहीं दिखता। पानी बजट आप जी देखो, पानी ये बहुत कॉमन है, यही ब्रीड करता है। ये देखिए, मैं एक जगह स्लाइड शो दे रहा था वहाँ भरतपुर में, तो वहाँ के लोग थे तो शेखर दत्तात्रेय मेरे साथ था। तो मैंने जो स्वर्गीय भूपति उन्होंने रेप्टाइल से बहुत अच्छा काम किया, तो वो कहते थे कि मैंने उनको बताया, जो बाद में बताया, तो शेखर दत्तात्रेय जी से पूछा मैंने कि ये स्नेक को जानता नहीं कौन सा है, तो इस टाइप फीडबैक बताया उसने मेरे को। तो ये जो फीमेल है ये फीमेल हेलो, हाँ बोलो। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही, आवाज आ रही है। आप बोलो। अब आ रही है। हाँ इंटरनेट गया। तो ये इसके जो देख रहे हैं ना आप, नोट लग रहे, गांठ बांध दिए उसने। मैंने जब इसका स्टडी किया काफी, तो मैं नहीं पहचानता मेल फीमेल। तो ये एक बर्ड ज्यादा फीड करा रही थी बच्चे को, एक नहीं। तो ये रिसर्च के दोस्त थे, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैं सर ऐसा ऐसा, बोला अरे वो बहुत इंटेलिजेंट आती है, बोला वो फीमेल फीड करा रही है ज्यादा उसको, मेल कम है, यंग मेल होगा। हाँ 4 पेयर बीट करते पार्क में, लेकिन अब तो एक दो करता। हाँ हाँ हॉबी भी हॉबी आ रही है सर आवाज? आ रही है, बोलो। हाँ हाँ जी। हॉबी, ये यूरिसन हॉबी हमारे यहाँ ये आता है ये अगस्त सितंबर में, और ये नवंबर में वापस चला जाता है। इवनिंग में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो मैंने करीब 15 दिन काउंट किया है। और ये ड्राई एरिया में रहता है, पानी के पास भी रहता है, अलग अलग एरिया में जो चले जाते हैं क्योंकि खाने के लिए। चित्रा बहुत कॉमन है। और ये देखो स्प्रे किया है इस व्हाइट मिस्टर वाटर हेन का ये। और चिकरा काफी ब्रीड करता है। ब्राउन हॉकाउल ये विंटर विजिटर है, ये तो खाली सर्दी में आता है फिर चला जाता है। हाँ डस्की हॉर्न आउल, ये मैंने विदाउट करीब 30 फीट ऊंचा हाइट लगा के चारों तरफ कवर करके 600 लेंस का नोवो फ्लाइट विदाउट फ्लैश स्टेट कह रहा है कि लाइट आती कब है। तो जनवरी के महीने में 8 मॉर्निंग में सनराइज होते ही स्टेट लाइट आती थी, वो फोटो लिया मैंने। ये चिड़िया बहुत बहुत होशियार है जी, सब चीज जानती है। 2 अंडे देती है और जिस बल्चर आती दूसरे के नेस्ट को ऑक्युपाई करती है। ये इसकी भी स्टोरी बड़ी अच्छी है। ये ऊपर वाले पेड़ पे ब्रीड किया इसने, और साइक्लोन आया, ऊपर से टूट के बच्चे छोटे से नीचे गिर गया, वही पेड़ से तो नीचे इसने। तो हमने उन बच्चों को उठा के और पेड़ को पूरा जो ब्लॉक था उसके पास लगा दिया था और बच्चे बैठा लिया उसने। तो उसने ये आ गया, दोनों आ गए। तो बच्चे छोटे हैं तो अंदर व्यू बैठी है। और ये मार्च अप्रैल में ब्रीड करते हैं। कॉलर पत्ता बहुत कॉमन है। स्पॉटेड आउलेट, और स्पॉटेड आउलेट आपने पक्षी ऐसा है कि फैमिली को साथ रखता है। ओरिएंटल स्कॉप साउल, ये ओरिएंटल स्कॉप साउल भी विंटर विजिटर है, विंटर में आता है। मॉटल गोडाउन, ये एज पे ब्रीड करता है।
ये मैंने जब डॉक्टर साहब को बताया तो बड़े खुश हुए थे। मैंने खाली स्केच करके बताया उनको कि ऐसे एक चिड़िया है बाइफर में, ये बच्चे तो उसने गर्दन गर्दन सब बना, ओ हो मोटर बुलाओ, बोला हाँ 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 मैंने देखा है, बच्चे नहीं देखे, तो देखने में ले गया उनको दिखाने के लिए। हाँ, ये एज पे ही ब्रीड करता है, तो 10 के होना हो इसको मारता है। छोटी अराउंड ये कॉलर हेयर में इवनिंग टाइम में कितने सारे बैकटेल और ये रूस्ट करने आते हैं पक्षी, वो ये उनको मारे खाते हैं। ग्रे नाइट जार कॉमन है काफी। लॉन्ग टेल नाइट जार ये हमारे यहाँ खाली विंटर विजिटर है, विंटर में ही आता है। सवाना ये ब्रीड करता है पार्क में मार्च अप्रैल में। हाँ ये कॉमन किंगफिशर 3 बच्चे हैं इनके साथ में, देखें आप, ये मार्च अप्रैल में ब्रीड करते हैं मड होल के अंदर, क्योंकि और कैनाल में काफी फिश होती है, शैलो वाटर होता है, फीड बहुत होता है। वाइट थ्रोट किंगफिशर, अब ये यहाँ पे सांप बहुत हैं पानी के, ये कॉमन सा हो गया है कि ग्रे हिरन भी सांप खा रहा है और ये किंगफिशर भी सांप खा रहा है ना, पर्पल हिरन भी सांप खा रहा है और सारस क्रेन भी सांप खा रही है। ये पार्क में ब्रीड नहीं कर रहा, पार्क के बाहर ब्रीड करता है, रहता पूरे साल। हाँ ये विंटर विजिटर है, ये विंटर में आता है ब्लैक कैप किंगफिशर। ये कभी ज्यादा सर्दी होती है जब, तो हमने उड़ीसा में तो बहुत देखे हैं। तो पार्ट्रिज, ग्रे पार्ट्रिज, और रात शाम को रूस्टिंग का पेड़ पे ही करते हैं, तो शाम होते ही उससे पहले ये एक साथ बैठ गए, क्योंकि इनका प्रेडेशन रात को होता था, वो ज्यादा। हाँ ब्लैक पार्ट्रिज हमारे ग्रासलैंड एरिया में मिलता है खूब, तो पूरे साल रहता है। मैंने 3 बच्चे देखे, लेकिन 4 बच्चे कभी नहीं देखे, तो ये 4 बच्चे बहुत बढ़िया। ये जनवरी में ही पैराकीट अपनी जगह को और फरवरी में ब्रीड करते, मार्च अप्रैल तक बच्चे बड़े हो जाते। हाँ हम तो और लेसर गोल्डन बैग की कहेंगे तो इसको, हमारे यहाँ करते हैं काफी। हाँ हाँ मराठा ये भी ब्रीड करता है फरवरी मार्च में, कॉमन है बहुत। हाँ मुनिया, रेड मुनिया ये अभी ब्रीड कर रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने बनाना ग्रासलैंड एरिया में, काफी बहुत पूरे इसमें ग्रासलैंड। चलो ब्लू थ्रोट विंटर विजिटर है, विंटर में आती है साथ में यहाँ। अच्छा ये रूबी थ्रोट के लिए तो लोग परेशान रहते हैं मेल ब्यूटीफुल इसके लिए सब देख इसके पीछे भागते हैं सब, बहुत ये विंटर विजिटर है। और हिमालयन भी आती है, लेकिन वो कम, ये जब 2 बात वो रहता है, हिमालयन आती है तो ये दूर रहती है और ये आती है तो वो दूर रहती है। बीवर बर्ड ये तो कॉमन है काफी, नेक्स्ट मार्च अप्रैल अभी यहाँ भी कर रहे हैं ब्रीड, काफी लेट तक करते हैं। हाँ ब्लैक थ्रोट बीवर बर्ड ये हमारा कॉलर है ग्रासलैंड एरिया सवाना, वहाँ ब्रीड करते हैं। ब्लू टेल ग्रीन बीटर ये आती है अप्रैल मार्च में, क्या है ब्रीड करने जाती है और फिर लौटती है वापस। ये सारस क्रेन, और ये देख रहे हैं आप, ये पानी जो आता है धीरे धीरे, उस पानी मिट्टी में जब जो आता है पानी सूखे उसमें, तो काफी इंसेक्ट खाने के लिए मिलते हैं, फिश फ्रॉग वगैरह और बीटल्स इंसेक्ट उनको खाने के लिए करते हैं। देखिए ये सारस क्रेन और वाटर कॉक का अंडा खा गई, तो ये तो कभी ऐसे ही है, नेचर है। ये 2 के साथ में बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पार्क में किसी टाइम में तो करीब मोर देन 100 पेयर ब्रीड करते थे पार्क के बाहर इधर उधर, और अभी इस टाइम में हमारे यहाँ 5 पेयर हैं जो 5 पेयर ब्रीड करते हैं। और पार्क के बाहर तो क्योंकि पानी की वजह से हमारा वेटलैंड सुखड़ गया, तो जी यूपी में चले गए ज्यादातर, तो उधर चले जाते हैं। हाँ कॉमन क्रेन
कॉमन क्रेन तो बहुत आते थे, इनका भी कम आना यही है कि इनका जो फूड था, जो दाल जो करते थे किसान, तो वो नहीं करते अब। तो इस और दूसरा हमारे पार्क में भी थोड़ी दिक्कत हो गई कि इनका हैबिटाट जो है वो पूरा चौक हो गया बैठने का। जी बहुत चालाक चिड़िया है, अलग बैठती, दूर घास किसी उसके पास नहीं बैठती, प्रोसेस इसने चौक कर दिया काफी। तो बाहर जाती है। हाँ फाइबरिंग पेन अभी बताता हूँ थोड़ा। ये मेरा बैच 1992 का पिक्चर है, वो खाली आप देखो फरवरी का। जब पानी रहता है पार्क में, जब पानी आता है नवंबर अक्टूबर नवंबर ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो करीब 4 फुट पानी रहता है, और फरवरी तक पानी जो है जनवरी फरवरी इस तरह का है, शैलो वाटर हो जाता है। तब ये काफी चलिए। हाँ चलो जी, ज्यादातर हमारे यहाँ लेटरल फ्लेमिंगो आते हैं ज्यादातर, लेसर नहीं आते, लेसर एक आध दो आते हैं। फिर इनका ये अगस्त ये आ जाते हैं सितंबर में, और सितंबर में विंटर में रहते हैं पूरा, और फिर चले जाते हैं। फिर पासिंग माइग्रेशन होता है, फिर अप्रैल में आते हैं वापस, तो थोड़े दिन ठहर के फिर चले जाते। ये नील गाय फीमेल, ये बैंक में ना, ये पूरा ऊपर से इंसेक्ट खा रहे हैं, उसको सफाई करे वो आराम से। हाँ जैकल, ये फाइटिंग है खाने के ऊपर, इधर लेफ्ट साइड में कुछ वो है इसका खाना, तो वो उसको दूसरा वो कर रहा चाहिए। इस कॉमन है, पूरे साल यहीं रहता है, पूरे काफी है। एंटीटर, ये किसी जमाने में हमारे पार्क में मिलता था, और पार्क की फोटो है ये भी। तो क्या था कि ये तो अभी कहीं से यहाँ हमारे 40 किलोमीटर दूर जो रिवाइंस है उसमें गांव में घुस गया था, तो जंगल में छोड़ दिया था जी उस टाइम। तो यहाँ 68 के अंदर एक एंटीटर गांव, जो गांव वो चलाते थे मवेशी, उन्हें किसी ने मार दिया, मैं उठा के लाया, और डॉक्टर साहब को और जो कैंप इंचार्ज था शेखर साहब ने उसको स्टेप करके, और अभी शायद BNHS के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अब तो नहीं है ये, लेकिन वो छोड़े हुए दो कभी कभी दिखते थे, अब नहीं दिख रहे। फिशिंग कैट का बहुत अच्छा किटिंग के साथ में बहुत बढ़िया, ये बहुत रेयर है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत हुई जब पानी कम हुआ, खाना कम हुआ, तो इधर उधर चले गए, इसीलिए। बाकी ये इतना पानी रहता, खाना रहता, पक्षी खूब बहुत कॉमन देख सकते हैं। ये अल्फा मेल ये एक बड़ा बढ़िया वो तक नीचे पत्ती थी, ये उसमें पाइथन बैठा हुआ था, और ये अल्फा मेल आया और मकाक ये आया, और बड़े आर्म से बहुत गिरी, बहुत तगड़ा था, और वहां बैठ के हम तो बाद में आए, और इसने पाइथन ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के क्रैश किया। जब हम आ गए थे तो पूरे को क्रैश किया, पूरा तोड़ा, बॉडी तोड़ काट के उसको एकदम मार दिया। तो तू और दूसरे लोग इकट्ठे हो गए, वो कलट साहब आ गए, जी आ गए, वो गए, तो ये पाइथन छोड़ के नीचे चला गया। फिर हम लोग चले गए, तो हम लौट के वापस आए, 7 बजे करीब, 7:30 अंधेरा था, और देखा तो पाइथन हमारे सामने आया। फिर उसने पूरा इसको किया, पैरों की तरफ से खाने की कोशिश की। फिर अनूप सर या डायरेक्टर थे, फिर मुंह से उसने शुरू किया, फिर पूरा हेड जो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया, और इसको पूरे को उन्होंने बाद में हम छोड़ के चले गए, डिस्टर्ब नहीं किया कि छोड़ देगा इसको। फिर लौट के आए रात को 10 बजे, तो देखो पूरे को सोलो कर गया वो, वहां बैठा, मतलब 3-4 घंटे में वो पूरे को सोलो कर गया, पूरे को, और वही मिला। ये देखो लेपर्ड हमारे यहाँ पार्क में जो कई बार आ गया, और काफी दिन तो खाने के लिए बहुत है, इसके लिए पानी है, रहने के लिए खाली रॉक नहीं है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, तो इसलिए ठहर नहीं पाते। एक बार दोनों मेल फीमेल आ गए, उसके बाद क्या है कि ये हमारी जो जानवर है वो जानते ही नहीं कोई प्रेडेटर है हमारा, ऐसा दुश्मन है, तो अलार्म कॉल देना नहीं जानते, लेकिन जब उनको मारा मुरी करी ना, तो सब भगने लगे, चिल्लाने लगे। हाँ, ये हमारे लिए इस साल का नई स्पीसीज है,
लेकिन बहुत सारी स्पीसीज ऐसी आती है, जैसे लॉन्ग बिल डोइचा आया, हमने उसको वो लिस्ट में नहीं लिया, और भी बहुत स्पीसीज उसको हटा दिया। ये ग्रास ब्रिसल ग्रास बर्ड, ये हिमाचल में रहती है। हिमाचल से जी उत्तराखंड कॉर्बेट उत्तराखंड होती हुई, ये अभी इसका रिकॉर्ड दिल्ली का सुल्तानपुर का भी है, लेकिन हमारे यहाँ जी पहली बार देखी हमने। और हाँ, बहुत बढ़िया। इंडियन चित्ता नवरंग पक्षी, खूबसूरत, ये भी पार्क में आता है जून जुलाई में, और इस बार पहली बार जो है इसका नेस्ट मिला यहाँ पार्क के अंदर। ये देखिए, ये है वो लास्ट पेयर, 2001 में ये पेयर आया। उस टाइम पानी कम था, तो ये इसने पूरा साल ये फरवरी फोटो है, ये आप देख रहे हैं। ये सारस, ये कभी भी अलाउ नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन जब पानी जो थोड़ा लिमिटेड था तो कंप्रोमाइज हुआ इनमें कुछ, तो ये बात दोनों साथ वो भगाने के लिए कर रही है, इंडियन कॉल कर रही है ना, साइबेरियन सारस को भगाने के लिए कर रही है। और पीछे देखें करेला की, तो ये 2001 में आया अक्टूबर में, एंड और 2002 में गया मार्च में। फिर उसके बाद ये पेयर 2002 में आया नहीं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आते थे और नेक्स्ट मार्च में जाते थे नेक्स्ट, तो वो उसके बाद नहीं आया। ये लास्ट पेयर है साइबेरियन क्रेन का भारत में आने वाला। हाँ, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री है, देखे शायद पसंद लगेगी आपको। ये छोटू मेरा बच्चा है, उसने बनाया था बच्चों को दिखाने के लिए। हाँ,
हैं। हाँ सर, सुन रहे हैं सर? सुन रहे हैं सर? नहीं, आवाज नहीं जा रही। जी नहीं, आवाज आ रही है, बोलिए जी, आवाज आ रही अरे है। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। ये देख रहे हैं सब मंगूर, अफ्रीकन मंगूर फिश है जो हमारे पार्क को काफी डिस्टर्ब कर दिया है इसने। जो काफी इसको बड़ा मंगूर करीब 1 मीटर लंबा, तो इनको निकाल रहे हैं, हर साल निकालते हैं। और ये अनुसार से 2008 से शुरू किया, जब भी मालूम पड़ा था, पहले पता नहीं था। तो हर साल इनको निकाल के, क्योंकि ये कितना पक्षियों को खाना, पक्षियों को खा जाता है, फिश खा जाता है। और ये बड़ी बड़ी इकट्ठा ग्रुप में चलता है, पकड़ लेते हैं, चाहे पेलिकन हो या कुछ भी हो। तो एक जब इनको चेक किया, पता नहीं था उस टाइम, तो जी फिर देखी नहीं थी हमने। तो 2008 में हमने इनको कांटे से हुक से पकड़ के देखा, हमने साहब को बताया नई मच्छी है, पेट फाड़ के देखा तो जैकाना निकला उसके पेट में, इंडियन मोरहेल निकली उसके पेट में। तो फिर उसके बाद मालूम पड़ा तो वो हैचरी है, उससे हमने इसको पूरी को खाली करके और 16 में तो खत्म कर दिया था पूरा। अब हर साल, क्योंकि ये मच्छी इतनी चालाक है तो पैदल भी चल सकती है, ऐसे छोड़ दो 10-12 किलोमीटर, तो चल चल के पानी में आ सकती है और मड के नीचे घुस जाती है बिल्कुल पूरी। तो अब जो है हर साल करते हैं इसका ऑपरेशन। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा हो आपको। और अभी मेरे कुछ दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जो बाहर फॉरनर, वो तो जानते हैं मेरे तो नए होंगे। बोलो, ये दिल मांगे मोर। हाँ सर। ये दिल मांगे मोर। बढ़िया। ये छोटे बच्चे ने, जो छोटू है, उसने बनाया एक छोटा सा शॉर्ट, इसका डॉक्यूमेंट्री का सर, डॉक्यूमेंट्री का, वो फोटोग्राफी का। बहुत सारे हैदराबाद में दोस्त हैं और साउथ में सब जगह, जो बेडरूम से ही वो सीखता है और करता है तो फोटोग्राफी। और बस वो हॉबी, सब बच्चे मेरे जंगल में ही पैदा हुए, वहीं पले बड़े, तो वही है। जैसे मैं बड़ा हुआ इन पेड़ पौधों के साथ में, जो आज बहुत बड़े हुए, उसी तरह से ये बच्चों को इंटरेस्ट हुआ। आज जो है, मैं तो ऊपर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, कि अच्छा है कि बहुत बच्चों में जो इंटरेस्ट है नेचर के पे, जो देखें हमें कोई कुछ वो नहीं, चलो कुछ नहीं, हम खाली अपने इसको देख रहे हैं अपनी सारा ट्रेन। आप तो हमारे यहाँ आ जाते हैं। हाँ तो हाँ सर, कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ सकते हैं, कोई नहीं। हाँ, अभी वो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। थैंक यू बोलू। माय प्लेजर सर, यू वेलकम सर। Everyone, can we put our hands together for Bolu, please? Thank you, Bolu. My pleasure, sir, you welcome. Humayun, Yeah. should we start taking the questions? Yeah, I think so, Moti. You want me to do the honor? Yeah, if you could, we can share them. I see one from. There's a few questions. बोलो, एक सवाल है। डॉक्टर जी सैमुअल सुकुमार साहब पूछ रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स डिड यू पब्लिश वॉल्यूम? मैंने पब्लिश भी किए, बाकी मैंने जिस बच्चों ने पीएचडी की है, मैंने सब बच्चों को फ्री दिया है, कभी मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया। और ज्यादातर मैंने जो फोटो दी है वो सबको ऐसे दिए हैं, पब्लिश नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। कोई किताब नहीं निकाली, वॉल्यूम किताब? हाँ, किताब तो अब करते, अब टाइम मिला है कुछ करने का, लेकिन उस टाइम तो काम करते थे, ये भी करते थे, सारा काम देखते थे। पर अब बच्चे करेंगे, बच्चों को इंटरेस्ट है ज्यादा, क्योंकि ये अच्छा है, नेचर से पूरे जुड़े हुए हैं सर। अगर किताब निकाल रहे हैं भोलू जी, सबसे पहले मेरा ऑर्डर है। हाँ सर। मैं थोड़ा लाइन में आ जाओ भाई, मैं हूँ पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से सवाल है। लॉकडाउन की वजह से, या लॉकडाउन जो कुछ
फर्क पड़ा उस पे अपने बर्ड पॉपुलेशन स्पीसीज पे? अरे सर ये तो कुछ बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, कुछ फर्क नहीं, पर फर्क ये पड़ा, अच्छा हुआ कि पूरा तो कभी ब्लू स्काई जो हम देख नहीं पाते थे, डस्ट ही डस्ट दिखती थी, अब पूरा ब्लू स्काई दिखा। पक्षियों में इतना अच्छा वो देखा, क्योंकि बंद हो गए सब ये, तो पक्षी इतना बढ़िया ऐसा अपने को महसूस कर रहे थे, इन्वायरमेंट जितना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था सर। तो उससे बहुत हमारे पार्क के लिए, इनके लिए फर्क पड़ा था, अच्छा रहा, नुकसान नहीं हुआ कोई। गाड़ियों की आवाज आती, लॉरियों की आवाज आती, बैठी है, मैंने देखा नहीं उसका। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है, बर्ड स्पीसीज बढ़े हैं क्या? नंबर उनका बढ़ गया है? 6721। सर जब पानी आता है, जो खाना का नेचुरल बढ़ता है नंबर ऑफ बर्ड्स का, तो अब ये क्या है कि मेन डिपेंड करता है पानी के ऊपर तक। वो तो असल देखो सर, ये जो डक्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, उनका जाता है, कभी कम हो जाता है। रेजिडेंट बर्ड हमारे जो हैं, जो उनका जो ज्यादातर फिजिटर है जैसा, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन विंटर में आप देखेंगे, अगर पानी है और डस्ट है, तो आप रेप्टाइल, वैसे सभी चीज देख सकते हैं, बहुत अच्छा। लॉकडाउन से तो इतना अच्छा रहा है कि कोई तो ट्रक की, लॉरी की आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, पक्षी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और अब जंगल में पूरी अच्छी बिल्कुल हरियाली, पानी थोड़ा बहुत बरस गया तो उससे बहुत अच्छा एकदम ग्रीन हो गया। अब तो बिल्कुल ग्रीन है, जब जून एकदम ग्रीन हो गया, तो सर थोड़ा सा पानी पड़ा उससे। तो लॉकडाउन से कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं। जानवर पूरे जो एनिमल्स, जो पार्क के जो पूरा फ्री एकदम पास, क्योंकि टूरिस्ट भी नहीं थे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं था उनके लिए। अच्छा रहा हमारा, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। नेक्स्ट वन फ्रॉम फाल्गुनी बेहरा। सर फाल्गुनी बेहरा जी फ्रॉम ओडिशा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। हाँ अच्छा सर। हाँ और इनके 3 सवाल हैं। जी सर। पहला है, ये मैनेजमेंट में ये जो रोड के बगल में पेड़ जो है, नेटिव स्पीसीज जो पेड़ है, व्यू पॉइंट के बहाने पे इनको काटा क्यों गया? नहीं सर, अंदर पार्क के तो कोई नहीं काटते हम। हाँ। और दूसरा इनका सवाल है, गोवर्धन कनाल जो है कितना अच्छा है, हाउ गुड इज इट, और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? देखिए सर, जब खाने के लिए कुछ नहीं होता, हाँ वही तो बता रहा हूँ। ये क्या है कि गोवर्धन के आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही। तो जो गंभीर नदी से पानी नहीं आता, तो अब जो है गोवर्धन ड्रेन जो है, फ्लड कंट्रोल ड्रेन है। आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है सर। तो फ्लड कंट्रोल ड्रेन है गोवर्धन ड्रेन, जो हरियाणा, राजस्थान और यूपी की है। तो ये बहुत साल पुरानी वो है। तो ये एक क्या था कि उसमें पानी सीधा जाता है और जमुना में गिर जाता है। तब जब पानी 5 इधर से बंद हुआ गंभीर नदी से, तो पानी आना, तो ये देखा कि ये पानी वेस्ट जा रहा है, तो उसको इसमें यूज करने के लिए, तो आज वही पार्क को भर रहा है। दूसरा क्या है, उसका सैंपल तो लेते हैं, वहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जिससे जो पानी ऐसा गंदा पानी है या कुछ है, इंडस्ट्री तो कोई नहीं है। पर गांव के पास में जो ड्रेनेज है वो जरूर है, पर और वो तो पानी उसमें फिट भी आता है, पक्षियों को खाने के लिए मछली भी आती है, मेंढक आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, सांप आते हैं, सब आते हैं। लेकिन ये तो पार्क कैसे बने? पानी की तो जरूरत है, पानी की बहुत जरूरत है। और पानी गोवर्धन ड्रेन नहीं आया तो वेटलैंड पूरा जो वुडलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पेड़ काटने वाली बात बता रहे हैं ना सर, वो प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, तो प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा उसको तो, क्योंकि वो तो किसी चीज को अपनी से होने नहीं देता, और उसके पत्ती खाते नहीं जानवर, और तो इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी है। अगर वो हुआ तो हमारे जो दूसरी जो स्थिति जो नेचुरल जो आता है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्रोसेस को निकाले। और फाल्गुनी जी का तीसरा सवाल है, ये जो बंड बरेठा है वहां पे डैम तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे,
ये कनेक्टेड है केलादेव से? अगर नहीं तो Yes, क्यों sir. नहीं? नहीं सर, वो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो डैम तो 40 किलोमीटर दूर है, वो पानी उससे कनेक्टेड नहीं है केवलादेव से। वो नदी के पास से उसको कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कुछ किलोमीटर दूर पे वो पानी जब फ्लड आता है ना, उसमें ज्यादा ओवर होता है तो क्विट खोलते हैं तो वो पानी हमारे पार्क में नहीं, वो नदी में नहीं आता। जो गंभीर नदी है, वो गंभीर नदी से दूसरा चक्कर खा के और निकल जाता है वो, तो वो उसको यूपी में चला जाता है। उस पानी को लेने के लिए हम कर रहे हैं गवर्नमेंट से काफी वो कोशिश, वो पानी आ जाए तो हमारे वो उसमें इसमें कैनाल इसमें डाल दें गंभीर नदी में, तो वो पानी हमारे पार्क में आ जाएगा। तो गंभीर नदी से कनेक्टेड है ही पूरा वहीं। जी सर। तो पानी की फिर कमी नहीं होगी? हाँ, हेल्थ, क्योंकि वो हैबिटाट जो बनवरेटा का हैबिटाट बिल्कुल सेम जो है गंभीर नदी का हैबिटाट है, वो सेम फूड है, सब कुछ एक है। वहाँ तो ये स्कीमर ब्रीड करते हैं आइलैंड के ऊपर और काफी, लेकिन वो फिशिंग विशिंग होने से काफी डिस्टर्ब है। काफी एक आइलैंड निकल जाते हैं, उसमें तो 5-6 स्पीसीज ब्रीड करती है, स्कीमर करते हैं, फिंगी स्नाइप करती है, स्टोन कल्लू करता है, कैरेटर वो करता है ब्रीड, और रिंग फ्लावर करती है काफी। तो क्योंकि वो उसमें नहीं आता हमारे यूरिडेशन में, फॉरेस्ट के में, तो इसलिए वो फिश फेंका होता है ना, तो फिशरमैन आइलैंड पे ही रह जाते हैं। और चंबल में क्या होता है, चंबल में जो स्किमर ब्रीड करता है तो वो खराब कर देता मगर घड़ियाल, मगर वो ऊपर चले जाते हैं आइलैंड के ऊपर ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सक्सेस था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। अच्छा। और स्कीमर तो हमारे यहाँ भी आता था, लेकिन हैबिटाट चेंज हो गया। हैबिटाट चेंज का मतलब पूरा ग्रास जो 5 कलम घास है ना, वो पूरे उसमें ओपन वाटर नहीं, फिर मच्छी जो खाने के लिए आता है, काफी चीज आता है ना, वो नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ अब नहीं आता। एक आध कभी कभी दिख जाता है वैसे ही। जी सर। अच्छा, अगला सवाल है आपका। बहुत लोगों ने तारीफ की है, बहुत लोगों ने तारीफ लिखी है यहाँ पे, थैंक यू सर। और थैंक यू सर। सवाल कम और तारीफ ज्यादा है यहाँ पे। आई नो। थैंक यू सर। ये कुछ सब लोग जो है ना, सवाल वही है कि एस्टॉनिशिंग फूड, और खास तौर पे मैं समझता हूँ काफी लोग ये साइबेरियन क्रेन से बहुत प्रेरित हुए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है कि साइबेरियन को देख सके। वो तो सही है। किंगशुक सेंगलास्कर जी पूछते हैं, भरतपुर में डेमोजल क्रेन दिखता है? सर डेमोजल क्रेन तो सूखे हमारे में वेटलैंड है, पानी है, पानी में नहीं आती। वो आती है थोड़े दिन के लिए, पार्क के बाहर जो खेत है ना था, वो पार्क में उनमें थोड़ी देर रुकती है, लेकिन कभी आती थी, अब नहीं आती, अब नहीं आती। पार्क के बाहर आती है, खूब निकल के जाती है वो वहाँ बाहर, और वो चली जाती है फिर हमारे राजस्थान की तरफ उधर किचन। जी। ज्योति जी चंबल के किनारे। जी जी हाँ, चंबल के किनारे पे डाउन ट्रेन आती है सर, चंबल के किनारे पे तो मिलती है। लेकिन अब वो वहाँ जो खाना जो खाते थे ना, वो तो वहाँ भी उन लोगों ने जो ग्राम और ये करना बंद, वो ये गर्मियों में ये जो उसमें मानसून में तो जो बाजरा और ये करते थे ना, मूंग वगैरह दाल, वो नहीं करते, तो वो खाने आती थी। लेकिन अब वहाँ भी नहीं आते। फिर दूसरा क्या, वहाँ शिकार विकार भी होने लगे, मारते थे लोग। कॉमन क्रेन को नहीं मारते, किसको मारते? नॉर्मल। अच्छा। डेमोइसल का जो है ना वो खासियत है, इट इज सपोज टू बी, वो लोग बोलते हैं कि खाने में बहुत मजे का होता है करके। मालूम नहीं सर। अच्छी बात है। ज्योति पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट द पार्क, किस समय आना चाहिए वहां पे? कौन सा सीजन सबसे बढ़िया रहेगा? नवंबर दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक, उसके बाद तो जो वेकेशन शुरू होते ही बच्चे इतने आते हैं, इतनी भीड़ आती है बहुत ज्यादा। तो जनवरी ठीक है, जनवरी ठीक है कोई सा भी। लेकिन दिसंबर में आना है तो मतलब सेकंड वीक तक, तो उस टाइम वेकेशन छुट्टी नहीं होती, तब तो बढ़िया रहता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफी, और जनवरी में आप बिल्कुल पास से पक्षी देख सकते हैं। जनवरी में बिल्कुल पास से आते हैं। फरवरी तो और भी अच्छा है, तो फिर बैक माइग्रेशन शुरू हो जाता है फरवरी। ओ रेजिडेंट हिरोनी का क्या देखना,
पूरे रेजिडेंट बर्ड तो वहीं रहते हैं। अब देखो माइग्रेटी में पानी अच्छा है तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। जी सर। अगला सवाल है गीतांजलि राजाराम से, कहती हैं आपका इतना नॉलेज है, उसे शेयर करने के लिए एक बुक निकाल दीजिए प्लीज, हम सब खरीदेंगे। लाइन में आ चलो जाइए सर, गीतांजलि। करता हूँ सर, देखो सर, करता सबका है, आपका प्यार और आपकी दुआएं हैं, बहुत बढ़िया है सर। और सवाल ये है श्रीकांत से, ये हमारे डेक्कन बर्डर्स के ही मेंबर हैं, ये सब मेंबर्स ही हैं कुछ जो सवाल ले रहा हूँ सबका। ये पूछते हैं जी सर। डॉक्टर सलीम अली एज ए टीचर कैसे थे? तो कहते हैं कि अगर वो तो कुछ फर्क पड़ता क्या? अरे अरे सर, अब मैं उनको क्या बताऊं, वो तो एक होली आत्मा है। मैं जब वो आते थे तो मैं उनको लेने जाता था स्टेशन से, तो एक बार वो आए तो मैसेज आया तो हम लेट हो गए, गाड़ी ले जाए, गाड़ी नहीं थी तो वहाँ पहुंचे, हम तो में लड़ाई हो रही। मैं बाबा मतलब बुजुर्ग को कहते हैं, मतलब पेमेंट कर मेरा और मैं दूसरी वो देखूंगा। तो वो बोले मेरे पे पैसा नहीं है, तो उनका कहने का मतलब उनके जेब में पैसे नहीं थे, वो समझा नहीं। अब वो कहने नहीं, पकड़ के बैठ गया सामान को। अब बहुत देर तो एम की समझा नहीं क्या कह रहा है, वो हिंदी नहीं जानते थे। तो मैं गया पूछा था तो बोला बोलू ये क्या कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये इतना पैसे। मैंने कही क्या बात है, कह रहे बाबा पैसा नहीं दे रहा मेरे को, सामान डिब्बा लाया, मतलब भरतपुर की लेंगे जो ब्रिज लेंगे। तो मैंने कही कि वो साहब बोले डॉक्टर साहब पैसा मेरे पास नहीं है। तो डॉक्टर ग्रुप से पीछे, अब मैं तो समझ गया कह रहे कि कोई पीछे है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि इनके पास का कहने का मतलब नहीं है, इनकी जेब में पैसा पीछे आने वाला देगा, छोड़ मुझे है। तो पीछे ग्रुप साहब आए, डॉक्टर ग्रुप ने पेमेंट किया। और वो अगर आपने कोई स्पीसीज कुछ देख के और कह दिया कि ये फलानी चीज, तो गुस्सा हो जाते थे। बोले नहीं पहले अच्छी आ रही है सर आवाज? आ रही है, बोलो बोलो। आ रही है सर, आई। तो वो फिर वो उनका कहने का मतलब ये था कि पहले ये देखो और पहचानो और फिर बोलो। तो मैं जब छोटा था करीब, तो उनका कैंप लगता था, मैं जाता था, तो मैं नीचे डाइनिंग हॉल था, हम वहीं रहते थे, पापा मेरे कुक थे और कौन सी नस्ल खाना वाना बनाते थे। तो वो जो रिंग देख, चिड़िया देख रिंग जाता, तो वो शेखर साहब वो कहता था ये घायल पक्षी जो हो जाते हैं ना सर, डक वगैरह के, ये उनको लेने आता है। तुम्हें गुस्सा होते थे, तुम स्कूल नहीं जाते हो और यहाँ बैठ जाते हो इधर आके। तो यही गुस्सा होते थे, स्कूल क्यों नहीं जाते? जैसे जाते हैं स्कूल। फिर बाद में जब उन्होंने इंटरेस्ट देखा, जब मैं ज्यादा परेशान करता तो क्या करते थे कि मोरन, ये पर्पल मोरन, वो पर्पल मोरन दे देते थे हाथ में, ये लो पकड़ो इसको। अब जैसे हमने पकड़ा वो काट लिया उसने। तो फिर उनको जीता कि अब नहीं आएगा जी। फिर बोला अरे हमने कैसे पकड़ा, वैसे पकड़ो ना। मैंने काट लिया, वो काटेगी, हमने कैसे पकड़ा था, वैसे पकड़ो। फिर जाते में उनको बहुत सारी चीजें बताता रहा, ऐसा पढ़ता था, जब भी पैदल ही जाता था स्कूल। फिर उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा, फिर कोई चीज मैंने बता दी उनको, ये बता दी। फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर आप क्या जानते हो, कौन सी चिड़िया पहचानते हो? मैंने कहा सब पेंटेड स्टॉक। तो वो उससे पेंटेड स्टॉक कॉमन था। तो क्या अच्छा ठीक है इनके नेस्ट गिनो। उन्होंने मेरे को नेस्ट गिनना सिखाया। मैं ये हमारे यहाँ ना तो डीएनए करती थी नेस्ट काउंटिंग, ना ये हमारे डिपार्टमेंट करता, तब तो मैं पढ़ता था। तो नेस्ट काउंट करो। तो उस टाइम जो था, मैं बता रहा हूँ आपको 68 की बात बता रहा हूँ। तो हमने जो नेस्ट काउंट किए थे, मेरे साथी लाल, वो बोट चलाना जानता था, उम्र दोनों की, वो मेरे से बड़ा था। तो मतलब हमने 5000 नेस्ट काउंट किए। तो आप जी बताओ, पूरा इतने एरिया में इतने सारे पेड़ थे, अब तो वो पेड़ नहीं है और इतना सारा खाना था। तो 68 तो बहुत ज्यादा टाइम। तो आप देखते तो कहते क्या है वो, मेरे को दिखता है एकदम इतना ज्यादा याद आती है। बहुत सारे पक्षी आते थे, पानी था, खाना था, यही। तो हमने काउंट किया, हमने कहा सर ये पाया, नहीं तुमने गलत काउंट किए होंगे। कि कैसे काउंट किए? तो हमने बोट से गए, हम ऐसे गए, ये गए वहाँ, बिल्कुल काफी दूर तक पूरे एरिया, सारा एरिया देखा। मैंने कहा हाँ सर सारा एरिया देखा। कैनाल वाला देखा, कैनाल पे ब्रीड करते थे, बोट रोड के बोथ साइड,
काफी पेड़ थे उस टाइम, पेड़ इतने पेड़ थे। तो 1972 में एक फ्लड आया, उससे पेड़ बहुत सारे टूट गए, वो नुकसान हुआ। दूसरी बात क्या है, एक दिन मैं वो क्या है हमारा जो डीएफओ था गेम रेंजर, वो खुद डरते थे उनसे, तो वो डांट देते थे, वो काम उल्टा सीधा करता है कुछ ऐसे। तो मेरे से बोले ले इनको आपको वो दिखाला, दीवार बनी है उसको दिखाला। तो मैं उनको सीट पे, आगे वाली सीट पे और गद्दा बिछाया जो वॉमिट हो जाती थी। तो मैं ही ड्राइव करके ले गया, धीरे 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 गाड़ी दिखा लाया, वापस लौट रहा था। तो ये था करीब सितंबर का महीना आज में। तो वो माउंट के ऊपर मैंने कहा हो सारस सर, तो उन्होंने कहा हाँ सारस दिख रहे सारस। तो वो उसने कहा बच्चा है, मैंने देखा बच्चा नहीं दिख रहा। तो मैं उस पर चढ़ा बोनट पे, वहां से भी नहीं दिखा। तो मेरे सर बच्चा नहीं है, बच्चा है डंडा करके बच्चा है। फिर मैंने कहा ये, फिर मैं ऊपर चढ़ा पेड़ के, फिर मैं बैठ के देखा रहा। फिर मैंने हाँ सर दो बच्चे कि हमने बताया ना बच्चा है। तो फिर मैंने की हाँ मैं तो नहीं पहचाना। फिर उन्होंने बताया कि देखो कैसे पैर रख रही है, चल रही है, हैबिट उसके उससे उससे। तो सब समझे हम। तो फिर तो वो काफी मेरे से इम्प्रेस हो गए। फिर बोला अच्छा तुम पढ़ने जाते हो हमारे साथ चलो और टोकरी उठाओ और हम आपको ये हेल्प करो, पक्षियों की पकड़ो, नींद डालो और हम पैसे देंगे। मैं पैसा नहीं लूंगा, नहीं नहीं पैसा तो स्कूल के बाद चलेंगे और तुम्हारी कॉपी किताब के काम आएंगे। तो वो तो क्या मैं बताऊं आपको सर, मैं कह पैदल भी चलते थे खूब, चलते बहुत बार। पर उनका एक यही था, तो सही बोलो, और एक वो था उनका बहुत ज्यादा ईमानदारी, ऑनेस्टी। जब कभी मैं फ्लाइट शो ऊपर करता था, पीटर जैक्सन, हनुमंत राव साहब, ये अपने घोरपड़े साहब, पेरूमल जी, उनके कैमरा फोटो जो लोड करके देते थे। तो जब बताते फ्लाइट शो करते थे तो पहचान लेते ओ हाइट से लिया ये फोटो तुमने। आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। तो देख के बताओ ये तो तुमने उससे हाइट से लिया है फोटो सब पहचान लेते थे। और लास्ट में जो 84 में आए पीटर जैक्सन के साथ, हमने प्लांटेशन करवाया भरतपुर में, पेड़ लगवाए। वो आज भी है पीटर जैक्सन का, उनके दोनों के साथ में कदम का पेड़, जिसकी स्लो ग्रोथ है, लॉन्ग लाइफ है, 300 से 400 साल पुराना लाइफ रहती है, पर स्लो ग्रोथ है, बहुत अच्छा। फिर 84 के बाद तो वो फिर आए नहीं, तो बीमार हुए काफी। लेकिन भरतपुर से उनका उतना जी था कि लास्ट टाइम तक बोले, जब राजीव गांधी ने उनको दिल्ली में बुलाया प्रोग्राम में उसका, तो उन्होंने कहा कि मेरे को भरतपुर ले चलोगे, तो उन्होंने कहा हाँ भरतपुर ले चलेंगे, तो चलता एग्री हुए। लेकिन वो भरतपुर उनकी कंडीशन नहीं थी, तो भरतपुर से उनको काफी बहुत लगाव था, बहुत अच्छा है। हमारे भरतपुर को आज वो इतना बड़ा सौगात दे गए, इतना बड़ा, इतने सारे लोगों को रोजगार दे गए। आज जो आप देखो हमारे भरतपुर के अंदर हमने कितने रिक्शा वाले गाइडों को ट्रेन किया। ये होटल, एक होटल नहीं था उसमें, आज कितने सारे बड़े बड़े होटल खुल गए हैं। वो अच्छा टूरिस्ट आ रहा है, काफी अच्छा। और जी बेकलैंड तो बस से बेकलैंड था, बहुत अच्छा। मिसेस गांधी आई उस दिन, मेरी ड्यूटी लगी भाई प्लेटफॉर्म पे बोट पकड़ने के लिए। तो मैंने उस समय मैंने कहा लोग आएंगे, भीड़ आएगी, ये कोई नहीं आया। वो तो गाड़ी आई मिसेस गांधी और सालेम अली साहब, तो वो वो बोट पकड़, मैंने ऐसे बोट पकड़ी तो मेरी तो पीठ थी, तो मिसेस गांधी ने जो हाथ पकड़े सालिम अली साहब का और बोट में बिठाला। अब बोट में बिठाल के जब उनका फेस इधर से वो, तो मेरे से बोले ओहो आप भी है। तो आवाज कट गई है, बोलू। अभी आ रही है सर? अब आ रही है। अभी आ रही है। तो सर वो मिसेस गांधी के साथ में देखा मैंने उनको, और मिसेस गांधी के साथ मेरे बोले ओहो आप भी है। तो वो तो फिर मेरा उन्होंने ये देख लिया था, काफी इंटरेस्ट भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी जाता कहता भरतपुर जा रहे हैं, बोलू से जरूर पूछना। तो काफी अच्छा वो था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ दे गए वो। अच्छा, तो अगला सवाल है। हाँ सर। ये रघुपति, डॉक्टर रघुपति पूछ रहे हैं कि टोटल स्पीसीज कितने हैं पार्क में? हाँ सर, वो फर्स्ट टाइम 400। बोलू फिर आवाज कट गई।
think there is a book that was published that is there. No mind. Yeah, there is a book. I think that information should be there in the book as well. Yeah. Bharatpur also has a list of all the birds. It's a Yes. booklet It's there, I think. I have. This, if I'm not wrong, there's 390 or 391 species, something like that. Okay. बोलो ऑडियो नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा. His network है वैसा लग रहा है भोलू जी का, क्योंकि वीडियो भी हाँ, नहीं network दिखाई. ऐसे रहा है. Okay. Any questions? Any other questions are there? I think there's one I can see here. What advice? There's another one from Ananda over here. Wire-tailed swallow seen in Kerala. If I'm not wrong, that it is there. Yeah, he didn't show a picture. Actually, when I spoke to him last, he said he has got something like 250 pictures ready to show. With a very heavy heart, I had to tell him we have to fit the thing into 1 hour. So please don't show more than 70, 80 pictures. So he had to rush through his presentation a bit. Falguni ji has clarified there are 375 species. Okay, okay. Thank you, Falguni ji. Okay. Just disconnected. I think he is going to reconnect. जी सर, आ रही है सर आवाज? हाँ, अब आ रही है, अभी आ रही है. आ रही है. जी नेट का चक्कर है सही. अच्छा, ओके. अगला सवाल है किंगशुक से. वो पूछते हैं कि आज की पीढ़ी के बर्ड वॉचर्स के लिए आपका क्या संदेशा होगा? मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इतने सारे बच्चे जो हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत से हो गए, पहले नहीं थे. और अभी हमारे जो पीढ़ी के अब जो लोग हैं, वो जो लोग, उनका सालिम साहब का यही कहना था, हो पैदल घूमो, हार्ट अटैक नहीं होगा. ऐसे घूमो, चिड़िया देखो, हार्ट अटैक नहीं होगा. तो ये है आज तो हर जैसा भी है जो जिस एज में है, तो घूमने फिरने का वो तो अच्छा रहता है. जो अच्छा, आपका यही संदेशा होगा सलीम अली साहब का कि हाँ हार्ट सर, चिड़िया देखिए. वो घूमो आराम से, घूमो डंडा लेके और नेचर में. और रेडमी को मैं पहचानता नहीं हूँ. ये पूछते हैं कि आपके पीछे जो दीवार पे ये जो लगे हुए हैं सब, ये क्या चीज है? अरे ये बच्चों के अवार्ड लग रहे हैं सर. बीच में बच्चों को आपका अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे वो लग रहे हैं सर. पीछे कमरे में मेरा जो है, बीच में आपका नाम लिख रहा है मेरे को. कमरा नहीं है, मतलब यहाँ गेस्ट रूम है, बैठते हैं उसमें. हाँ, बहुत सारे अवार्ड लगे. आपके सर के बिल्कुल पीछे आपका नाम है, तो बच्चों के नहीं है, वो तो आपका है. हाँ सर, जी सर. इधर बच्चों को जो अवार्ड वगैरह मिले हैं, जैसे उन्होंने लगा दिए, मेरे लग रहे हैं. Remark to Vikramjit, he retired as a forest department official, not a tour operator. Range officer. Range officer. He was working with the forest department and he retired as a official of the forest department, not a tour operator. But he also used to guide tours. He has had the honor of working with David Attenborough, also Belinda Wright. And Bolu ji, हाँ सर. डॉक्टर सुब्रमण्य आपसे बात करना चाहते हैं. जी सर. बोलो जी, नमस्कार. नमस्कार सर. मैं आपने मुझे देख लिया है 1980 में. BNHS का बैच में आ गए थे वहाँ डॉक्टर रहमानी के साथ. अरे वाह. हमारे साथ आप रहते थे. हम हमारा स्टडी में वो रिंगिंग करते थे हम. और I have seen 33 Siberian crane देखा है मैंने. अरे हाँ सर, बहुत पुराना होगा. 1980. So please don't mention numbers. I am going very green. We knew Bolu so much because we depended on him with his vast knowledge of the park. I've seen only one pair years back, I think 2000, around that time, but not after that. People in India have seen 33 Siberian cranes.
Amazing. That's the reason why we are asking you not to mention तो that. बहुत अच्छा लगा मुझे. जी सर, Okay. थैंक यू. I think the chat was over. Would anybody like to ask any questions? कोई कुछ पूछना चाहता है? Anybody here? Please raise your hand. Maybe we can check from there. Anybody, any questions? I don't see any hands raised as of now. Okay. बोलो जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के. थैंक यू सर, माय प्लेजर. In that case, may Bolu ji, thank you. Humayun, can you do the honors? You want me to? Okay. बोलो जी, first of all, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए. एंड ये डेफिनेटली बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, खास तौर पे हम लोगों पीपल हु आर मे बी हैव नॉट विजिटेड भरतपुर, और कुछ मैंने भी सिर्फ एक दिन वहाँ पे गुजारे थे. कई ऐसे स्पीशीज आपने फोटोज दिखाए हैं जिसका मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन मैं कभी देखने का मौका नहीं मिला. बट आई थिंक सब लोग, ऑल ऑफ अस आर थिंकिंग कि अब आने का टाइम है वहाँ पे. ये कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह, जो भी जैसा भी. मोस्ट वेलकम सर, कभी भी. तो ऑन बिहाफ ऑफ डेक्कन बर्डर्स मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए. और माय प्लेजर सर. to all the participants, thank you everyone for attending this webinar. I hope you learned something. I'm sure, I know I have, and I hope you've enjoyed yourself. So मेरी तरफ से Murthy, you want to add anything? Yeah, one small thing. Let's all put our hands together for Bolu. Yes, please. If you can just unmute yourself for a minute. Bolu, अगली बार जो करेंगे, माय प्लेजर. एक वेबिनार और करेंगे, लेकिन उस टाइम आप पिक्चर के पीछे की कहानी सुनाइएगा. फोटो के पीछे जरूर सर, नो प्रॉब्लम. कोई भी आए, कैसे वो फोटो लिया. इस टाइम वो वक्त नहीं मिला हम लोगों को. सो नेक्स्ट टाइम ये फोटो के साथ ये कहानी कैसे देर लगी, कैसे खींचा फोटो, उसकी कहानी, वो भी बर्ड वॉचर्स हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. And a very quick word at the end. Next week, Sunday, same time, 6:30, we have Clement Francis presenting Birds of East Africa. Clement is a very well-known photographer based in Bengaluru. His pictures have appeared in plenty of journals and magazines. So we have him on board next week, Sunday. So I look forward to seeing you all and welcoming you all next Sunday. And a special thanks to BC for putting me in touch with Bolu. BC, thank you. Bye, Murthy. Guys, thank you all. Good night. Everyone, thanks a lot. Bolu, adab. Wonderful, sir. सर, बढ़िया सर.